Hi guys, I'm Nidhi, proud mother of a young man, creator of my own life, an omnivert, a lifelong seeker, an educator, and your coach and companion. So, today I'm here to not talk about anything but to start a series of interviews with ordinary people just like you and me who are no longer ordinary because of the way they've handled the situations of their life. So for me, I feel that success is not all about earning money. Success is also about how well you deal with the difficult challenges life throws in front of you, how dignified you are, and how you come out of it with your head held high. So we all have challenges. Challenges like maybe loss of a loved one, you've lost a job, going through a difficult relationship, coming out of a divorce, parental challenge, a health challenge, a wealth challenge. So challenges can be taking some unconventional decisions against the society or against your loved ones also. All of these challenges, and this list can just go on and on. So, as I start this series of interviews, I'd like to introduce the amazing, courageous woman from Mumbai, Archana Patil. Ever since she was a child, she's gone through the most difficult situations that we can ever think of. But her grit and determination has kept her moving. She's faltered many times, but she's never given up. And today, she's an inspiration for so many. And how she's come out of such difficult situations and how she's faced these challenges, why not listen from Archana herself? So, thank you so much. Thank you so much, and welcome to this platform. Thank you. Thanks a lot, Nidhi, for inviting me. It's my pleasure to be part of your some research work or just to inspire people. The thing which you're doing, it's very great. People need some boostings. So I'm lucky to be a part of it. I'm honored to have you. Thank you. So, tell us something about yourself, Archana. How was your life when you were growing up, and tell us something about yourself, how it was in younger days. Before marriage, we belonged to a very low middle class family. We were 3 siblings. I belonged to a nuclear family. I was the elder, but I was one of the neglected child in the house. बहुत से ताने मिलते थे, मार पड़ती थी भाई बहनों से, and I was not in a good atmosphere over there, but कैसे भी करके फ्रेंड्स के थ्रू उनकी मदद लेकर वगैरह मैंने पार्ट टाइम जॉब्स किए. I completed my graduation. After graduation immediately मुझे लेक्चर का जॉब ऑफर हुआ. So I started doing a part-time lecturer's job in a college, in a junior college, and later on, along with that, I started teaching in 3 different classes. But वहाँ पे भी ऐसे था that I used to leave the house at 6 o'clock in the morning. तभी भी I was not offered anything. मतलब एक चाय का प्याला पी के मैं निकल जाती थी, आते आते 2-3 बज जाता था. And the money which I earned was absorbed by my family. पैसा भी हाथ में नहीं रहता था कि मैं बाहर जाके कहीं कुछ खाऊं या कुछ. In between, it so happened कि मैं जो बच्चों को पढ़ाती थी, तो वो बच्चों में और मेरे में hardly 3-4 साल का difference था. They were in the 12th standard and I had just passed my graduation. तो ऐसे ही आते जाते उनसे बात करते, I shared my issues with them. So then one of my student told me about my husband. उनका रिश्ता उन्होंने बोला they are searching for a partner. तो फिर बात चली and it so happened that on the 8th of Feb 1996 हमारे देखने का जो प्रोग्राम होता है वो हुआ and within 15 days I got married to him.
एंड इट वाज सो कि बस मुझे ना उस घर से निकलना था. दैट वाज द ओनली एम टू गेट मैरिड. सेटल होना था वो ठीक था, बट इतनी टॉर्चरमेंट थी ना. एट द एज ऑफ 24 आल्सो माय फादर यूज्ड टू हिट मी विद नो रीजंस. छोटी छोटी बातों पे मारना, ताने देना, चिल्लाना. तो वो सब से मैं बहुत तंग आ गई थी. एंड आई गॉट मैरिड ऑन द 22nd of Feb 1996. एंड मेरी दुनिया it took a different step. Cool. Wow, that's some starting to your life story. Wow. And amazing. So all these difficulties जो आपने deal किया, आपके अंदर कोई negative belief भी डालता रहा होगा. बहुत. How did you manage that? क्या मतलब क्या आपने अपने अंदर क्या belief system आपका उस वक्त with so much of negativity coming in, क्या चलता था आपके mind में कि मैं but still you kept moving. So ऐसा क्या था? ना बात ऐसी थी ना, आई हैड अ गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. उनका सपोर्ट अच्छा था, कुछ रिलेटिव्स अच्छे थे. बट लेटर ऑन इट सो हैपेंड मेरे फादर ने मुझे उनसे भी तोड़ दिया. उनको ताने देना, उनको गंदी गंदी बातें बोलना उनके बारे में. तो देन आहिस्ते आहिस्ते व्हेन आई वाज इन द SY, so that time I cut off with all my friends कि मेरी वजह से मेरे फ्रेंड्स को भी गंदी गंदी बातें सुननी पड़ती है. तो इट हर्ट मी अ लॉट. तो जितना हो सके ना इन्होंने मुझे आइसोलेट करने की कोशिश करी. एंड इन मीन टाइम आई वाज वर्किंग विद अ डेंटिस्ट. तो फिर वहाँ पे आई ट्राई टू एंड माई सेल्फ ट्वाइस. तो आई डेंट कुछ हुआ नहीं. तो देन इट वाज लाइक नो, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गणपति बाप्पा. So मेरा ऐसे था, maybe he has some different plans for me. I am so glad. Then, yes. That kept me rolling on. Wonderful. I'm glad that didn't work out. And I do understand what goes on in the mind when somebody thinks of such an extreme step. And yes, that so what up, yeah. It so happens कि जब रास्ते बंद हो जाते हैं ना, you see everywhere darkness, so you search for such kind of paths. And it was not so, Nidhi. After marriage also मैंने 2 बार कोशिश करी है. So ये आगे हम बात करेंगे तो we'll get to know about it. So you said that your life changed for after marriage. So कुछ और बताइए अपने बारे में, please share something. Life change हुआ इसलिए मैंने कहा कि कोई मेरा मुझे मिल गया था, कोई अपना कहने वाला मुझे मिल गया था. जब हमारी शादी हुई तो माय सिस्टर इन लॉ उन्होंने कोई और रिश्ता बताया था इनको. एंड ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद दैट एंड ही गॉट मैरिड टू मी. तो वो उन्होंने गुस्सा मन में रखा. एंड फ्रॉम द डे ऑफ माय मैरिज आई वाज टॉर्चर्ड ओवर देयर. शादी वाले दिन घर के बर्तन वगैरह सब मुझे करने लगाए. शादी के दूसरे दिन वो पग फेरा होता है, तो मेरे मायके से लोग आए थे. सो माय सिस्टर इन लॉ डिडंट लाइक दोस पीपल कमिंग. सो आई वाज कुकिंग. तो तभी उन्होंने जब आटा गूंद रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ पे गरम तेल डाल दिया था. पूरी का आटा गूंद रही थी, तो शादी वाली दूसरे दिन मेरा हाथ जला दिया था. सो इट वेंट ऑन. और इनको बाकी सर्कमस्टांसेस पता थे कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि वो वहां पे तंग आ गई थी, इसीलिए मायके में तंग आ गई थी. सो शी गॉट मैरिड. सो इसका उन्होंने फायदा उठाना शुरू कर दिया. And my mother-in-law, na, she was manipulated a lot by my sister-in-law and younger brother-in-law. तो ऐसे होता था, जब भी मेरी mother-in-law मेरे से अच्छा बर्ताव करती थी तो ये लोग आके मम्मी को मैनिपुलेट करते थे. एंड देन अगेन फिर वो भी मुझे ताना देना या कुछ बोलना है, या कभी कभी मेरे से हफ्ता बात नहीं करना. ऐसी चीजें होती रही. How did you manage all this? How did things change for you then, Archana? Because today you are so successful, and I see you as a very strong woman. How did it? Of course, you were strong then also. Lekin, how did it change? My husband was very supportive. He knew how his siblings were.
उनका बर्ताव, पर उनका ऐसे था अगर मैं मेरे सिबलिंग्स को कुछ बोलूं तो माय मदर विल गेट हर्ट। तो फिर वो मुझे कहते थे आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बस उनका सपोर्ट था, इसीलिए मैं आज तक हूँ। तो और बताइए अपने बारे में, योर लवली किड्स, प्लीज शेयर अबाउट। I got married in 96 in Feb, and मेरी बेटी पैदा हुई December 96, the very same year. तो गुड़िया पैदा हुई, everything was happy. तो मुझे और ये लगा कि और पॉजिटिविटी ऐसे आ गई कि एक my husband was there, मेरा कहने वाला एक आदमी था और एक आदमी जुड़ गया। तो एंड वो बचपन से ना गुड़ियों से खेलने का जो शौक था वो सब शौक मैंने अपनी गुड़िया पे पूरा कर दिया। तो उसके लिए कपड़े सीना या उसके लिए कुछ और चीजें करना, अलग अलग चीजें करना। एंड उसके बाद ऐसे होते रहा, जब भी वो जगते रहती थी, व्हेन शी वाज अवेक, मेरी मदर इन लॉ उसको लेके बैठती थी, उसके साथ खेलती थी, और वो जब सोती थी तब ही मेरे पास आती थी। I hardly used to get time to spend with my daughter. तो इसी वजह से उसमें जो प्रॉब्लम थी वो समझने में मुझे थोड़ी देर लगी। तो आपको कब पता चला, you know, that when she was around 6 to 8 months, तब एक इंसिडेंट ऐसे हुआ कि रश्मि साइकिल was different, वो दिन में सोती थी और रात में जगती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ, बेड का जो सोफा कम बेड टाइप होता है ना, तो उसका मैं अंदर से कुछ निकालना था, तो उसका जो दरवाजा था वो जोर से पटका मेरे हाथ से। इट स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड एंड वो आवाज से भी वो उठी नहीं। शी वाज स्लीपिंग ऑन द सेम बेड। तो तभी मुझे कुछ डाउट आया, मैंने कुछ तो प्रॉब्लम है उसके हियरिंग में। पर मुझे ऐसे लगा मे भी वो पूरी रात जगते रहती है, सो उसकी वजह से वो सोई होगी, शांत सोई होगी। देन अगेन आई ट्राइड ऑन, शी वाज क्राइंग, तो अलार्म वॉच था बेड के पास। मैंने वो, जैसे बच्चों को आवाज सुनाते हैं तो वो रोना बंद कर देते हैं, तो आई ट्राइड ऑन डूइंग दैट। तो वो अलार्म की घड़ी की आवाज से भी वो रोना उसने बंद नहीं किया। देन आई हैड अ डाउट, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने वो अपने हस्बैंड से शेयर किया। देन ही टोल्ड माय मदर इन लॉ अबाउट इट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते वगैरह, सो डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट इट। बट वो माँ के मन में जो डर होता है ना, सो देन वी डिडंट इन्फॉर्म आवर मदर इन लॉ, बट वी टुक हर टू एन ENT। तो ENT के पास लेकर गए, तभी शी वाज अराउंड 8 months आई थिंक। तो फिर ENT ने भी वही कहा, इट वाज 24 years बैक, जैसे अभी एडवांस्ड है तो तभी इतना ये नहीं था। डॉक्टर्स भी दे यूज्ड टू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी, जैसे मदर इन लॉ ने कहा, बच्चे कभी देर से रिस्पॉन्ड करते हैं, वेट एट टिल हर फर्स्ट बर्थडे। तो ऐसे करते करते 1 साल ऐसे ही बीत गया। उसके फर्स्ट बर्थडे के बाद आई सेड नहीं, अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। So then when she was 1.2, so then we took an appointment in Alia Varjang Institute in Bandra, जो इंडिया में वेल नोन इंस्टीट्यूट है फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। तो फिर वहाँ पे उसके सब टेस्ट शुरू हो गए। एंड देन लेटर ऑन ऑल दोस टेस्ट ना, इट टुक अराउंड 6 to 8 months टू कंप्लीट। सब उसकी हिस्ट्री है वो सब, और उसको हियरिंग एड्स लगने में बहुत दिन गए आगे। तो when she was a 1.10 or something, उसको हियरिंग एड्स लगे। Okay, wow, that might have been a challenge for you, right? How did you accept it? कैसा रिएक्शन आपके आसपास के लोगों का कैसा था, आपकी in-laws? जब उसका पता चला तो डर बैठ गया कि लोग क्या कहेंगे, हाउ विल पीपल रिएक्ट, या फिर कोई नुस्खा कोई बोले कि ये जड़ी बूटी दो, वो जड़ी बूटी दो, दैट विल हेल्प यू आउट और समथिंग। तो ऐसे करते करते ना आई रियली फील सॉरी, बट
मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने बेटी पर किए. कोई कहे करेला का जूस पिलाओ एंड ऑल, फिर ये भगवान का करो, वो भगवान को. आई ट्राइड ऑन मेनी थिंग्स. आई थिंक एज अ पेरेंट बहुत नेचुरल है अर्चना, हम सब यही करते हैं, यू नो, अपने बच्चे के लिए जितना कर बस सकते उसका हैं. कोई अच्छा हो, यही इंटेंशन से सब किया. ये भगवान के जो फास्ट होते हैं वो सब करो. देन वन फाइन डे आई सेड इनफ. वो एक दिन ना वो करेले का जूस जो मैं पिला रही थी, तो शी वाज throwing it, she was vomiting it out. तो I felt so sorry and I cried कि नहीं बस it's the end, अब मैं कुछ नहीं ट्राई करूंगी मेरी बेटी पे. एंड उसके बाद I didn't try it. So you can say around 5 to 6 months मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे अपने बेटी के साथ. So as much as I know, I think कुछ साल, 1-2 साल के बाद you had your son also, right? Yes. आपका बेटा आया आपकी लाइफ में. उसमें भी it so happened कि चीजें बदलती गई. My parents started taunting me. In-laws तो बोलते ही थे बच्ची ऐसी है तो ये दलिंदर को ऐसे ही बच्चे पैदा होंगे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चलता था. My father used to taunt me regarding her hearing impairedness and all. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऐसे डिसाइड किया था कि हम एक ही बच्चा करेंगे. We won't go for the second child. बट ये जो तानों से ना मैं इतनी तंग आ गई थी निधि कि मैंने सोचा कि नहीं, I'll go for a second child. But I didn't let my husband know about it. Okay. एक इंसिडेंट उसके पहले ऐसे हुआ कि बहुत ताने हो गए और मेरे हस्बैंड भी तंग आ गए. एंड देन वन फाइन डे ही सेड कि मुझे ना ये सब चीजों से बहुत चिड़चिड़ हो रही है, और ये जो भी हो रहा है ना, ये जो भी प्रॉब्लम्स हमारे फैमिली में हो रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, एंड दैट ऑल बिकॉज ऑफ यू हर्ट मी अ लॉट. And then Nidhi, I tried on with my second attempt to end myself after marriage. उसके पहले भी एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था कि मैं जो भी खाती थी, मतलब प्रेगनेंसी में खाती थी, बच्ची पैदा होने के बाद जो भी खाती थी ना, वो खाने पर से भी ताने हमेशा दिए जाते थे. तो एक दिन मैं तंग आके, that time also I took 6 sleeping pills. एंड मैंने रश्मि को पिल्स लेने के बाद रश्मि को भी दूध पिलाया. एंड मैं और वो पूरा एक दिन वी वर नॉट इन कॉन्शियस. लेटर ऑन ये जब इंसिडेंट हुआ, मेरे हस्बैंड ने जब कहा कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, तो वो जो हर्ट कर गया. देन आई टुक मेनी स्लीपिंग पिल्स, बट दैट टाइम आई डिडंट फीड माय डॉटर. मैंने वो स्लीपिंग पिल्स लिए एंड आई जस्ट स्लेप्ट, एंड आई वेंट इन कोमा फॉर 3 days. एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द कोमा, 3 दिन के बाद मैं जब कोमा से बाहर आई, देन आई सेड इनफ ऑफ योर अटेम्प्ट्स, कि नाउ गॉड हैज सम अदर प्लान्स. इसीलिए वो आप इतने सब कोशिश करने के बाद भी आप मान नहीं रहे हो, तो गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान्स. सो आफ्टर दैट निधि, I say that I have never attempted anything. I'm very glad you never did that, and I'm very glad nothing worked out. Because otherwise you wouldn't have, I think, realized what you are capable of. So tell us about तो जतिन ऐसे ही जतिन का ऐसे हुआ कि मैंने कहा, जैसे मैंने हस्बैंड ने और मैंने डिसाइड किया था we won't be going for the second child, but I was pregnant. उसमें जतिन आ गया हमारी दुनिया में. Okay, and so I'll ask you a little tough question again, and no, I'm sure it's not tough for you anymore because you've handled it so well. So when you came to know about the fact that not just your daughter, even your son has a difficulty, how was it? How did you feel that situation? At Jatin's time, it was not a shock for us because we were mentally prepared for it. जतिन जब पैदा हुआ ना, वो जो डर था मेरे मन में, तो बस
जतिन पैदा हुआ दोपहर 2 बजे एंड 2:30 बजे जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया जतिन के साथ, तो आई वॉज बैंगिंग द बेड, उसके ऊपर कुछ बैंग कर रही थी एंड दैट टाइम डॉक्टर एंटर्ड, सो शी न्यू ऑल द हिस्ट्री, सो शी सेड ये क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? मैंने नहीं, मैं देखना चाहती हूँ ये सुन पाता है क्या नहीं। एंड ही वाज स्लीपिंग एंड ही गॉट अप विद दैट साउंड। तो वो तो था, बट एज ही ग्रू अप, 1 साल का हुआ तो वो साउंड को रिस्पॉन्ड करता था, बट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू स्पीच। नेम कॉलिंग है या उसको कुछ बोला जाता है तो ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट। तो देन अगेन इट वाज लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है इसमें भी। तो फिर पहले तो उसके सब टेस्ट हुए, हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो भी टेस्ट होते हैं, बेरा टेस्ट, हिज ऑडियोमेट्री एंड ऑल, एवरीथिंग वाज डन। और उसमें पता चला कि 55 डीबी लॉस है। तो देन 55% डीबी लॉस है, बट हिज बेरा वाज नॉर्मल, सो अगेन द क्वेश्चन मार्क वाज देयर। Meanwhile, I got my daughter admitted to a special school, preschool training शुरू हो गई उसकी, और मैंने भी वहाँ पे ये बच्चों को ट्रेन करने का कोर्स ज्वाइन किया था। So there the director Kunda Darvi, she suggested that we'll meet a doctor. And the school itself had invited to check Jatin over there. Meanwhile, Jatin was around 1.3 or 5 something at that time. And there Dr. Vibha Krishnamurthy, she was invited by the school and she assisted Jatin. Okay. And then she told me that this is autism. तो वो autism word भी मेरे लिए नया था 20 साल पहले. But I was prepared कि कुछ तो problem है. Within half an hour you would say I was on my toes कि नहीं, there's something new and I have to get prepared for it. So what of course you know there's no asking also in this कि आपके लिए कितना बड़ा challenge था, you know, 2 children and with such a difficult family to, you know, who doesn't support you in that. What kept you moving? आपको वो courage कहाँ से आया? What kept you moving? मैं जो भी बच्चों पे काम कर रही थी ना निधि, बच्चे उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे थे एंड दैट गेव मी मोर एंड मोर, जो बोलते बच्चे मेरे हिम्मत आते गई कि नहीं तू जो कर रही है ना, यू आर गोइंग ऑन द राइट पाथ एंड योर किड्स आर सपोर्टिंग योर वर्क, सो कीप डूइंग इट। एंड ऐसे होता था कि आई यूज्ड टू, माय डे यूज्ड टू स्टार्ट एट 5 o'clock in the morning. 5 o'clock उठ के पहले पूरा घर का काम 7-7:30 बजे तक कंप्लीट करना एंड देन माय होल टाइम वाज फॉर माय चिल्ड्रन। बड़े होते गए, माय हस्बैंड यूज्ड टू सपोर्ट मी इन ऑल वे। वो बच्चों को तैयार कर देते थे जब तक मैं अपना काम निपटा लेती थी एंड देन उनका ऐसे था कि आई यूज्ड टू कुक ओनली इन द मॉर्निंग और वो ही गरम करके सुबह शाम हम खाते थे। जैसे कुछ फैमिलीज में रहता है ना, हर वक्त सुबह ताजा खाना चाहिए, शाम को ताजा, यू वांट सम डिफरेंट फूड और वैरायटी ऑफ फूड। तो हियर माय हस्बैंड वाज अ बिग सपोर्ट। इस मामले में उन्होंने बहुत हेल्प करा। इनफैक्ट अगर मैं बच्चों का कुछ कर रही हूँ तो ही यूज्ड टू डू मैनेज द किचन, या फिर खाना लेना है, खाना परोसना है, खाना गर्म करना है, तो वो करते थे एंड टिल नाउ ही इज डूइंग इट। वंडरफुल। आई थिंक that's the biggest support। आपका पार्टनर आपको अगर सपोर्ट कर रहा है सब में, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके अकेले के तो नहीं है, and he is also understanding, you know, and that's amazing। That's really good। जिनको चाय बनानी नहीं आती थी, आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने बेसिक खाना भी पकाना सीख लिया। Wonderful। Just to help me out, and because of that I could dedicate my time to my children। That's amazing। And so अर्चना, ये सारा situations जो भी आपने handle किया है अपनी life में, देखी हैं situations, how has it helped you to grow? आपको अपना ऐसी कौन सी चीज है जो आपने अपने बारे में realize किया है through this journey, this tough journey? Believe in yourself, और stay positive and acceptance। जो भी है, मतलब आपके बच्चे special needs वाले हैं, so what? वो अपने बच्चे हैं, take it in a positive way and work on it, miracles will happen।
Wonderful, wonderful. So जल्दी से कुछ बताइए रश्मि और जतिन के बारे में. I'm sure the people, they've heard about Jatin and Rashmi facing challenges, but what are they doing? I think that is something they will love to hear. So आप please बताइए कुछ quickly उनके बारे में. Rashmi is now 24. She's done 35 stage shows till now. Wow. She's a national level Bharatanatyam dancer, and in this lockdown she is learning many different dance forms through YouTube. Recently she's won a national level dance competition also, which was organized by Lee Rhythm and the Ministry of Culture. Apart from that, she's an aspiring model. Just 3 days back she did an assignment for print media. Wow. Modeling assignment for print media. Apart from that, since 6 years, she owns her handmade jewelry business. She is a trained art teacher, and she completed her diploma in Nritya Yoga. So now she can start her own classes for yoga too. She is a patient of severe migraine from the age of 1. And every year around 20 to 25 times she was admitted in the hospital for the same. उसके माइग्रेन अटैक्स इतने सिवियर होते थे कि हॉस्पिटलाइजेशन के अलावा कोई जरिया ही नहीं था. एंड फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड, व्हेन शी वाज इन द 8th स्टैंडर्ड, तब से उसे लो बीपी का भी इशू है. शी हैज लो बीपी प्रॉब्लम. शी गेट्स लो बीपी अटैक्स एनीवेयर. वो कहीं भी. Brave daughter of a brave mother. Amazing. I'm sure traits pass on होते हैं. Then this is the courage you've passed it on to your children. And how about Jatin? Jatin is doing his masters in mathematics from IISER Pune. Okay. And he stopped a scholarship. He stopped a KVPY. He stopped in India in KVPY scholarship. And since 5 years, he's staying alone in the hostel. He's managing all his expenses on his own scholarship. Wow. All expenses, mane uske books ho ya everything, his hostel fees and all, he's managing everything on his own. जो बच्चे को हम till the 11th standard हम छोड़ने ही जाते थे कॉलेज में, वो आज पूरी इंडिया में अकेला ट्रैवल करता है. And this lockdown has helped me a lot to develop more life skills. वो खाना पकाना सीख गया. He's doing all the household work now. It's like amazing. As you say, I'm having goosebumps already. It's so heartwarming and heart touching. Thank you, Archana. Archana, जो भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, I'm sure उनकी लाइफ में भी challenges होंगे बहुत लोगों की. आप क्या कहना चाहोगे? What message would you like to give to the people who might be watching you right now? See, Nidhi, I'm not that great to give any messages or like. No, See, challenges तो आते ही रहेंगे आगे भी. But अगर आप हार मान जाओगे ना, तो वो challenges जो छोटे भी है ना, वो आपको बड़े लगते हैं. So you take those challenges in a positive way and overcome it in a happy way. तो वो ऐसी चुटकी बजाए जैसे challenges भाग जाएंगे आपको. Think positive, stay positive and believe in yourself. And don't accept anything from anyone. खुद खड़े रहो अपने बच्चों के लिए और अपने लिए. तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती. Amazing. Yes, I totally believe in you, and I think I hope all of you who are listening, who are watching Archana, do get some kind of inspiration and the courage to move on. Thank you so much, Archana.